Hello everyone, welcome once again in our chapter number 4 Chemical Bonding and Molecular Structure. Today, now we will start a very important topic. It's the most important topic in chemistry too. So it's nothing but it's a molecular orbital theory. And these sessions of this molecular orbital theory will be taken, as we know that, from J.D. Lee reference book. So it's a quite good book for your concept clearance. That's why I take the advantage of this book. But nothing, you don't worry about the J.D. Lee book, because your textbook as well as the J.D. Lee book, but some concepts, some basic concepts and some figure representations, which is very neat and clean drawings are given in this J.D. Lee book as compared to our NCERT textbook. That's why I use such a type of a international book. So we know that in the molecular orbital theory, so what's the difference between the valence bond theory and molecular orbital theory? We know that there are lots of disadvantages or lots of limitations in a valence bond theory, and this type of limitations is removed with the help of molecular orbital theory. So in the valence bond theory, sometimes called as an electron pair theory too. So in this electron pair theory, a molecule is considered to be made up of atoms, electrons in atoms occupying atomic orbitals. So this may or may not be hybridized. If they are hybridized, atomic orbitals from the same atom combine to produce hybrid orbitals which can overlap more effectively with orbitals from other atoms. So thus producing a stronger bond, and thus the atomic orbitals or the hybrid orbitals are though to remain even when the atom is chemically bonded in a molecule. But in the case of molecular orbital theory, the valence electrons are considered to be associated with all the nuclei in the molecule. Thus, the atomic orbitals from different atoms must be combined to produce a molecular orbitals. यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाया गया है कि देखिए, वैलेंस बॉन्ड थियरी का मतलब है कि उसमें मैं अपनी तरह से भी यहाँ पे थोड़ा अपना भी आउटपुट यहाँ पे डालूंगा. मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, द मीनिंग ऑफ वैलेंस बॉन्ड मींस इन द केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट्स इन सच अ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी क्या बता रही है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है. एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मेरे पास सोडियम है, 11 नंबर सोडियम है और वो दूसरे कोई एक मेटल से कंबाइंड होता है, या मैं दिखाना चाहता हूं आपके पास जैसे मैंने N2 गैस की बात की है, राइट. तो वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बता रही है कि नाइट्रोजन की जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए आएंगे. अगर बॉन्ड फॉर्मेशंस होगा तो अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है या नहीं होता है, जो भी होता है, जो भी केस होता है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट होते हैं. बट इन द केस ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी वो ऐसा बता नहीं रहे. वो ऐसा बता रहे हैं कि इन द केस ऑफ N2, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ atom number 1 nitrogen and 7 electrons of atom of second nitrogen, so total 14 electrons है, उसका हमें पार्टिसिपेशन देखना पड़ेगा. ये जो कॉन्सेप्ट है मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी का, ये कॉन्सेप्ट उसने यहां पे समझाया हुआ है, राइट. जो ये थियरी है वो है डेवलप्ड बाय फ्रेडरिच हुंड, जो आपने हुंड लॉज आपने पढ़ा हुआ है, एंड रॉबर्ट एस मुलिकन, राइट, इन 1932. It's called as a molecular orbital theory. Okay, takes the view that a molecule is similar to an atom in one important respect. Both have energy levels that correspond to various orbitals and that can be populated by electrons. So in atoms, these orbitals are called as an atomic orbital, but in molecules, they are called as a molecular orbital. अभी क्या होगा, एटम्स की ऑर्बिटल्स जैसे कंबाइंड होकर मोलेक्यूल बना पा रही है, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि अभी मोलेक्यूल में चला जाए तो अभी जो भी नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलेकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे.
जैसे हमें मालूम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल में ऐसा कुछ हम नहीं बोलेंगे। जैसे वैलेंस बॉन्ड में हम क्या बोलते थे कि एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद अनदर एस ऑर्बिटल ऑफ अ, राइट, यहाँ पे एस और एस का ओवरलैपिंग होगा। तो कौन सी मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना वो दो टाइप की ही होती है, सिग्मा एंड पाई। यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लिए ये मोलिकुलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? वंस अगेन मैं आपको समझा रहा हूं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिच हुंड एंड रॉबर्ट एस मुलिगन इन 1932। उसके फीचर्स क्या है थियरी के, कि द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दूसरा है इसका फीचर्स, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म अ मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए कौन सी दो ऑर्बिटल है वो ज्वाइंट हो पाएगी, तो कि जिसकी एनर्जी में कम से कम डिफरेंस होगा और उसकी जो शेप है, उसकी ज्योमेट्री है, उससे मैच करेगी, तो वही है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। While an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule। देखिए कोई एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे के लिए एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस उसको एक ही अपने न्यूक्लियस का था। लेकिन जैसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल में चली जाती है तो मिनिमम दो और दो से ज्यादा न्यूक्लियाई का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर लगेगा। अच्छा, अगर इन्फ्लुएंस यहाँ पे लगने की वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? The number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbital। यानी जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है उतनी ही संख्या में, उतनी ही काउंटिंग में, उतने ही नंबर में मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो पा रहा है। So when two atomic orbitals combine, so it means that two molecular orbitals are combined। जिसमें से एक होगा ना उसको हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे और रिमेनिंग जो दूसरा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा अपनी तरह से समझा रहा हूं, बाद में मैं उसका फीचर्स थोड़ा डिटेल में भी आपको समझाना चाहता हूं। दूसरा क्या है कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है ना उसकी एनर्जी है ना लो होती है, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी है वो ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के आसपास मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो वो सेम ही है जैसे हमने एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के आसपास किस तरह से दिखा रहे थे, इस तरह से यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा पाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर इस नहीं बच्चे यहाँ पे मुझे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जी यहाँ पे किस तरह से मुझे इलेक्ट्रॉन्स फील करने पड़ेंगे। जैसे आपने आउटबाउ प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, पाउलिस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, हुन्स प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे भी मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में भी सेम फंडा से मैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें लगाऊंगा। अभी जो मैं अभी बोला मैं आपको यहाँ पे वो जेडी ली का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से डिटेल में बता रहा है, आप देखिए when two atoms approach each other, जैसे दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो their atomic orbitals lose their identity and mutually overlap to form a new orbital is called as a molecular orbital। मैंने आपको बोला था कि जैसे s ऑर्बिटल है और दूसरी s ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो पा रही है, तो अब जैसे मिक्स होने के बाद वो s ऑर्बिटल की अपनी आइडेंटिटी वो लूज कर दे, एक नया फॉर्मेशन है मोलिकुलर ऑर्बिटल का। सेकंड है द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक एंड आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम्स कॉन्स्टिट्यूइंग द मोलिक्यूल। समझ में आ रहा है? जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो पॉलीसेंट्रिक हो पाने की वजह से उसमें जो जितने भी एटम्स होते हैं उसके जो न्यूक्लियस होते हैं, राइट, तो सभी का उसके इन्फ्लुएंस में वो इलेक्ट्रॉन को रहना पड़ेगा। So the electron probability distributions around the group of nucleus constituting the molecule is given by the molecular orbital, just as atomic orbital give probability of the finding an electron around the nucleus in an atom।
तीसरा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है कि ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अबाउट द सेम एनर्जी एंड द सेम सिमेट्री इंटरेक्ट सिग्निफिकेंटली। जैसे मैंने आपको बोला कि 1s वाला है ना, वो 4s के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1s और 4s के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला 2s वाला 3s वाला के साथ करने के बजाय, जैसे मैंने आपको समझा कि 2s और 2s के बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा हो पाएगा, लेकिन इतना ज्यादा वो जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई 2s वाले है, जैसे 3p वाले है, 3px 3py 3pz, और दूसरी की कोई भी ऑर्बिटल होती है वो जैसे 5p, तो वो अपनी तरह से यहाँ पे उसकी एनर्जी सेम नहीं होने की वजह से वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे की। समझ में आ रहा है? द टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूटिंग बाय द एटम्स दैट हैव कंबाइंड। जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होगा उतनी ही मोलिकुलर ऑर्बिटल कंबाइंड हो पाएगी। When two atomic orbitals overlap, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास ओवरलैप होना चाहती है, तो उसका दो तरह से वो ओवरलैप कर पाएगी। पहला जो हम देखना चाहते हैं वो आप देखिए, फर्स्ट वन है, मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कि when the एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन फेज, यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्ड दिया हुआ है इन फेज, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये थोड़ा है ना श्रोडिंजर मैकेनिक्स है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ ये जुड़ा हुआ वर्ड है। मैं अभी आपको थोड़ा मैं अपनी तरह से भी समझाने की कोशिश करूंगा। व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन फेज it leads to an increase in the intensity of the negative charge in the region of overlap, यानी जो दोनों का रीजन है उसमें नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा हो पा रही है। So the molecular orbital formed has a lower potential energy than the separate atomic orbitals। यानी क्या हुआ कि अभी पहले क्या था, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस डाल रहा था। अभी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पे दोनों न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस चल रहा है और दोनों में अच्छा इलेक्ट्रॉन्स, इसकी डेंसिटी भी अच्छी बन रही है, तो उसको बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हम बोलेंगे, या हम BMO भी उसको बाद में बोलेंगे। अभी दूसरा क्या है, व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप आउट ऑफ फेज, जो फेज में से बाहर निकल के वो ओवरलैप करना चाहते हैं, सो इट्स लीड्स टू अ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज बिटवीन द न्यूक्लियस। जैसे दो न्यूक्लियस के बीच में इसका एरिया है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से, क्यों कम हो गई, क्योंकि वो आउट ऑफ फेज ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, सो दैट लीड्स टू हायर पोटेंशियल एनर्जी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? सो इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल डिस्टेबिलाइज द बॉन्ड। पहला वाला है ये बॉन्ड बना रहा है, दूसरा वाला क्या है, बॉन्ड को, जो बना हुआ बॉन्ड है उसको डिस्टेबिलाइज कर रहा है। समझ में आ रहा है? So the amount of stabilize of the bonding orbitals equals the amount of destabilize of the anti-bonding orbital। ये तो ऐसे ही तरह से होना चाहिए कि जो से जितना बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में स्टेबिलाइजेशन होता है इतना ही डिस्टेबिलाइजेशन होता है। अगर मैं क्या बोलता हूं कि बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल का पावर एंटी बॉन्डिंग से बढ़ जाएगा तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा, लेकिन दोनों का जैसे पावर एक ही होता है तो इसका मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, और वो जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो बॉन्ड क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमारी जो बुक है, जो हमारी ये मैं आपको दिखा रहा हूं, तो उसमें उसने साइलेंट फीचर्स यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं 6 पॉइंट्स में भी आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहता हूं। देखिए, electrons of the combining atoms are then assigned to this molecular orbital. Each molecular orbital can accommodate a maximum of 2 electrons of successively higher energy according to Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity। यानी ये वही करेंगे जिस तरह से हमने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम अपना जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर रहे थे, सेम टाइप से, सेम रूल से हम यहाँ पे भी करेंगे। जैसे पहले एंटी बॉन्डिंग में जाएगा या बॉन्डिंग में जाएगा, तो पहले बॉन्डिंग में जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू आउटबाउ रूल है, हमें मालूम है कि लोअर एनर्जी वाले में पहले जाता है। जैसे इक्वी वैलेंट एनर्जी वाले होते हैं तो उसमें वो अनपेयर्ड रहने की प्रोसेस करेंगे हून रूल से, और एक ही ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है वो रूल से वो उस तरह से ही चलेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं वो है फॉर्मेशन ऑफ
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको हम कभी बार LCAO भी बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी एक लाइन में दो लोग आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कई बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं किस तरह से मैं ये पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए आप, one common mathematical approximation to generate molecular orbitals for some small diatomic molecule is called as the linear combination of atomic orbital approach। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी भारी भारी भाषा का भी यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए आप H2 के बारे में सोचिए। क्यों H2 के बारे में सोचेंगे? क्योंकि H2 है यानी दो लोग ही है, तो दो लोग तो एक दूसरे के सामने लीनियर वे से ही आ सकते हैं, और दोनों अच्छे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। आप N2 भी सोच सकते हैं, आप B2 भी सोच सकते हैं, आप C2 भी सोच सकते हैं, आप O2 भी सोच सकते हैं, आप F2 भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं उसका जो स्टार्टिंग है वो H2 से करना चाहता हूं। कंसिडर टू एटम्स A and B विच हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन, जैसे हम उसको बोलेंगे साइन A। देखिए कई बार कई बच्चे को साइन यानी क्या है, इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। जैसे एक एटम का साइन है, दूसरे एटम का भी साइन B है। सो द व्हेन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ दिस टू एटम्स ओवरलैप एज द एटम्स अप्रोच, यानी दोनों अप्रोच करते हैं, तो वेव फंक्शन फॉर द मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन। जो साइन A और साइन B का लीनियर कॉम्बिनेशन हो पाएगा। वो किस तरह से हो पाएगा? द एटॉमिक ऑर्बिटल साइन A एंड साइन B combine to give rise to a pair of molecular orbital sin G and sin U। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा है, लेकिन आप इसमें कोई चिंता मत कीजिए। द फंक्शन sin G, इसका मतलब क्या है कि ये जो है कॉम्बिनेशन में sin G, इसका मतलब ये है कि दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियस ड्यू टू इन फेज ओवरलैप की वजह से हो रहा है। यानी इसको हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे। यानी साइन A और साइन B एक दूसरे को जुड़ने के लिए आ रहे हैं, और साइन G यानी प्लस जो साइन यहाँ पे दिखाई दे रही है वो बॉन्डिंग की है। सो इट्स लोअर इन एनर्जी देन द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड द फंक्शन साइन U corresponding to out of phase overlap and hence corresponding to minimize electron density in between the nuclei, and this is an anti-bonding molecular orbital which is higher in energy। आपको समझ में आ गया? मैं आपको सिंपल समझाना चाहता हूं। दो वेव फंक्शन है, राइट, और उसका जो साइन है दोनों का वो सेम ही है। दो एक दूसरे से पास आ रहे हैं और दोनों का साइन, वेव फंक्शन का साइन एक ही है, तो वो बॉन्डिंग पे चला जाएगा। और दोनों का अलग अलग है, यानी तो वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे जो बढ़िया वाली बात है ना, वो उसकी फिगर यहाँ पे दिखाई गई है। ये S ऑर्बिटल थी, लेकिन ये पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थी, ठीक है, S ऑर्बिटल। यहाँ पे हमें मालूम है इसका शेप स्फीयर होने की वजह से पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुझे मिल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ S ऑर्बिटल में भी यहाँ पे भी मिल सकते हैं। और बीच में देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट वाला प्लस है, ये प्लस है, ये प्रोबेबिलिटी का प्लस है, ये भी प्रोबेबिलिटी, और ये है ना वो इन फेज का प्लस है। इन फेज का मतलब कि आप दोनों आ सकते हैं, कोई बीच में रुकावट नहीं है, तो इसको हम इन फेज बोलेंगे। यानी ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये प्लस, लेकिन ये प्लस और ये प्लस एक नहीं है। देखिए ये एडिशन का या इन फेज का प्लस है, समझ में आ रहा है? दोनों आ रहे हैं, तो दोनों का अभी देखिए, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो इसका न्यूक्लियस उसको इन्फ्लुएंस में डाल रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में था, लेकिन अभी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत, यहाँ पे बीच में, दोनों के बीच में ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों न्यूक्लियस का अच्छा इन्फ्लुएंस रहेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा।
समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? आप देखिए कई बच्चे को, और कई बार हम सोचते हैं कहीं अपने जो शिक्षक है वो भी अच्छी तरह से ये समझा नहीं सकते ये प्लस और ये प्लस क्या है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों है वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझना चाहता हूं। इसका मतलब है कि अभी ये पूरा एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुझे मिल ही रहे हैं, ये भी है और एस में तो हमें मिलते ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे में क्या होता है, ये प्लस है ये प्लस है, लेकिन बीच में क्या है माइनस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आउट ऑफ फेज है, यानी कि यहाँ कोई रिपल्जन चल रहा है। मैं आपको अपनी तरह से समझाना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार एक रोड होता है उसमें एक्सीडेंट होता है, कई बार ट्रिपल एक्सीडेंट होता है, राइट। वो दो वाहन, देखिए आप यहाँ से दो वाहन आ रहे हैं तो उसको मालूम है कि वो एक्सीडेंट हो रहा है, तो पीछे वाले ने देखा कि भाई आगे एक्सीडेंट हो रहा है तो उसने क्या किया, अपना ब्रेक पूरा लगा दिया, यानी वो एक्सीडेंट में जुड़ना अभी नहीं चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कब होता है, बॉन्डिंग होने के बाद ही एंटी बॉन्डिंग हो पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा प्लस माइनस प्लस की जो हम प्रोसेस बता रहा हूं, तो ये प्लस तो ठीक है, लेकिन ये माइनस नहीं, ये प्लस का जो पूरा है ना एरिया, तो वो उसने यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे दो वेव फंक्शंस के साइन डिफर हो गए, देखिए दोनों के साइन डिफर हो गए हैं। तो बीच में जो एरिया देखिए, अभी देखिए पहले क्या था, यहाँ पे देखिए ये दोनों न्यूक्लियस में यहाँ बढ़िया इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखिए उसको हम नोड भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो नोड है, when we have to perform these two types of the atoms, so they convert into anti bonding orbitals में चले जाएंगे। तो उसको हम साइन SS कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है उसकी बात मैंने यहाँ पे दिखाई है, यानी अभी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड जो बना हुआ बॉन्ड देखिए, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाए, लेकिन ये दोनों तोड़ दिए, यानी कुछ बॉन्ड का मेरे नेट प्रॉफिट, नेट मेरा जो कैलकुलेशन है वो जीरो आ जाएगा, यानी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, फिर से देखिए, मैं यहाँ पे ये भी समझाना चाहता हूं कि व्हेन अ पेयर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइन ए एंड साइन बी कंबाइंस, they give rise to pair of molecular orbitals sin G and sin U। आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऐसा ही समझिए। The number of molecular orbitals produced must always be equal to the number of atomic orbitals involved। मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही थी, दो, यानी कितना होगा, दो मुझे मोलेकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। ये तो आपको समझ में आ गया। The function sign leads to increased electron density in between the nucleus and is therefore bonding molecular orbital। It is lower in energy than the original atomic orbitals। समझ में आ रहा है? Conversely, sin U जो आपको एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा है, तो वे two lobes of opposite sign cancelling and hence giving zero electron density in between the nucleus। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि this is an anti bonding molecular orbital which is higher in energy। So the molecular orbital wave function are designated sin G and आप sin G को न समझना तो bonding molecular orbital और ending molecular orbital। यहाँ पे G क्या है, G का मतलब है Garrett यानी even and U for odd। समझ में आ रहा है? उसको even और odd के तरह से भी हम दिखा सकते हैं। And G and U refer to the symmetry of the orbitals about its center। यहाँ पे सिमेट्री किस तरह से होती है वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए कई बच्चे को सिमेट्री के बारे में भी थोड़ा उसमें वो पता नहीं चलता है। मैं आपको सिमेट्री भी समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप पूरी अच्छी तरह से देखिए ये जो सिमेट्री है इसमें किस तरह से, आप देखिए ये बॉन्ड एक्सिस है। समझ में आ गया? यहाँ आप ऐसा ये पेन ही देख लीजिए ना, आप अभी देखो आपको यहाँ पे SS बोल्ड पॉइंट ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो बीच वाला जो यहाँ पे होल दिखा रहा है आपको, ये बॉन्ड एक्सिस है और इसका ये बॉन्ड फॉर्मेशन वो यहाँ पे बन रहा है पूरी तरह से। अभी देखिए यहाँ पे कोई SS बोल्ड पॉइंट ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता है। मैं पेन को जैसे घुमा रहा हूँ तो आपको सभी तरह से अच्छा एक ही लगेगा ना, प्लस 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 सभी जगह पे ऐसा ही लगेगा। तो इस तरह से आप इसको 180 पे घुमाइए यहाँ पे, तो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सभी जगह पे प्लस ही रहेगा, यानी साइन में कोई डिफर नहीं हो पाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? तो इसकी सिमेट्री तो है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री हम उसको बोलेंगे। तो ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री आपको यहाँ पे दिखाई गई है।
So the energy of the bonding molecular orbital passes through a minimum and the distance between the atom at this point corresponding to the internuclear distance between the atom when they form a bond. अब समझिए, देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ग्राफ दिया हुआ है. ये ग्राफ कहीं 2 या 3 साल पहले JEE एडवांस में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था. अब समझिए, ये एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन एटम्स का ग्राफ है. एक बार फिर से समझिए, एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी क्या बताइए, 0 है. अब समझिए, यहां से हम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, वो एक दूसरे के पास नजदीक आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एनर्जी लो 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 होके एकदम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी, यानी यहाँ पे कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे. और एंटी बॉन्डिंग में क्या हुआ है, देखिए 0 से ज्यादा ही पहले से ही रह रही है. सो ये जो एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है. तो ये जो मुझे ग्राफ दिखा रहा है कि बॉन्डिंग की एनर्जी है वो कम है और एंटी बॉन्डिंग की क्या है, ज्यादा है. सो इसकी वजह से क्या होगा, द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज लोअर देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बाय एन अमाउंट. उसका कितना डिफरेंस है उसको हम डेल्टा से दिखाएंगे. दिस इज नोन एज अ स्टेबिलाइजेशन एनर्जी. Similarly, the energy of anti-bonding molecular orbital is increased by delta. So, atomic orbitals may hold up to 2 electrons, right? Provided they have an opposite spin, and the same applies to the molecular orbital. In case of 2 hydrogen atoms combining there are 2 electrons to be considered, one from 1s orbital of atom A and one from 1s orbital of atom B. When combined, these 2 electrons both occupies bonding molecule. तो दोनों कहां पे चले जाए, दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही है ना. तो एक और एक दोनों कहां पे चले जाएंगे, बॉन्डिंग में ही चले जाएंगे. तो वो उसको कितना सेव किया हुआ है, देखिए आप समझिए. आप यहाँ पे मैंने एनर्जी दिखाई है, साइन ए साइन बी, तो उसने 2 बॉन्डिंग और मोने. तो यहाँ जो डिफरेंस था वो डेल्टा डाउन है और यहाँ डेल्टा प्लस है. तो उसने 2 डेल्टा का डिफरेंस उसने अपने सेव किया है. सो विच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बोल्ड एंथैल्पी, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे. It is only because the system is stabilized in this way that a bond is formed. तो मैं आज जो आपको समझाया वो मैंने s ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाया हुआ है. अभी मोलिकुलर ऑर्बिटल तो बहुत लंबा खींचने वाला है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जैसे p ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल किस तरह से कंबाइन होती है, p और p किस तरह से कंबाइन होती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में s और p है, लेकिन डिटेल में तो s p d f सब कुछ हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो s और p के तक ही सीमित है, तो हम यहीं तक हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मोलिकुलर ऑर्बिटल को आगे SS एटॉमिक से कॉन्सेप्ट निकाल के SP, राइट, PP दोनों कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.